Hello students, I am Sunanda Maini and I am going to take up another chapter with you today. Evans tries an O level and it is written by Colin Dexter. It's in the form of a drama where there are different characters. There is one criminal whose name is Evans. He is a very intelligent and a clever person. He is known for having broken the jail on 3 occasions earlier. And everybody in this chapter, all the jail authorities and the police officers are extra vigilant because they fear that he can break the jail anytime. It's a very interesting story. And the writer has been very successful in keeping the interest of the reader alive till the end. It's a suspense and we don't come to know what is going to happen. So I don't want to disclose the story before we start. Let's read the story and I'll keep explaining from time to time what was the intention and how did it happen. I keep telling you the word meanings and I'll keep telling you the story in Hindi as well. Mr. Jackson एक prison officer है. Mr. Stephen is also a prison officer. The Reverend McCleary who comes from the church as an invigilator. Detective Superintendent Mr. Bell, Detective Chief Inspector Mr. Carter, and so on and so forth. And the name of the prisoner is Evans. All precautions have been taken to see that the O-level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape. Evans is a prisoner who wants to take an examination in the German language at O-level, and the governor is over vigilant because he knows that Evans could break the jail on this occasion and run away. Evans एक कैदी का नाम है जो गवर्नर से ये रिक्वेस्ट करता है कि उसे जर्मन के ओ लेवल का एग्ज़ाम देना है और उसके लिए उसने रात को क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी. एक टीचर बाहर से आके उसे पढ़ाता था और वो क्लासेस अपनी कंटिन्यूसली ले रहा था पिछले 2-3 महीनों से और तैयारी कर रहा था. Now the governor, before the exam, he talks to the secretary of the education board or the person in charge for conducting exams, and he feels that we need to take all precautions. Governor बहुत ही vigilant था. उसे पता था कि एवंस जो है वो पहले 3 बारी जेल तोड़ के भाग चुका है और ये शायद इस मौके पे भी ऐसा करेगा. सो वो 3 महीने पहले से ही अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था और वो सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड से बात करता है कि ये कैसे करा जाए, जबकि ये बड़ी ही अनयूजुअल, नॉट अ कॉमन थिंग फॉर अ प्रिजनर टू टेक दैट एग्ज़ाम. एंड स्टिल the secretary says कि अगर ऐसा वो चाहता है then we should try to help him. हमें उसे चांस ज़रूर देना चाहिए, शायद वो अपना सुधार करना चाहता है. अब वो गवर्नर और बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं उनके बीच में कुछ सवाल जवाब होते हैं. तो बोर्ड के सेक्रेटरी उससे पूछते हैं that is he any good? He was the only one in the class, so you can say he had individual tuitions all the time. Really would have cost him a packet if he had been outside. So बोर्ड के सेक्रेटरी उससे पूछना चाहते हैं कि क्या वो एक अच्छा स्टूडेंट है. तो गवर्नर कहते हैं इसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो ही एक अकेला स्टूडेंट था और जो क्लासेस ले रहा था. अगर वो बाहर ऐसा करता तो शायद उसको बहुत पैसे देने पड़ते, लेकिन हमने वो सब उसके लिए प्रिजन में ही अरेंज कर दिया था. तो वो कहते हैं कि ठीक है, हमें उसे चांस ज़रूर देना चाहिए, हमें उसे हेल्प करना चाहिए, बट वी विल मेक श्योर कि सारे अरेंजमेंट्स जो हैं वो पक्के हों. सो बोर्ड के सेक्रेटरी उसे गवर्नर को एश्योर करते हैं कि आप फिक्र मत करिए, मैं आपको सब कुछ भेज दूंगा. आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ. व्हाट्स हिज नेम? यू से एवंस, जेम्स रॉड्रिक एवंस.
ये था उस कैदी का नाम जो एग्ज़ाम में बैठना चाहता था। अब बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं वो गवर्नर से ये पूछते हैं कि क्या ये जो क्रिमिनल है, क्या ये जो प्रिजनर है, जो कैदी है, कोई वायलेंट किस्म का इंसान तो नहीं? वायलेंट मीन्स कुछ भी मार धाड़ तो नहीं मचाने वाला, किसी को मार तो नहीं देगा। आई डोंट वॉन्ट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, बट क्योंकि वो ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो इंसान एग्ज़ाम लेने के लिए आएगा उस पर कोई भी घातक हमला ना हो, इसलिए वो उससे ये कंफर्म करते हैं। He says no, there's no record of violence. Quite a pleasant sort of a chap, they tell me. Bit of a card, really. One of the stars at the Christmas concert. Imitations, you know the sort of things. Mike Yawood stuff. No, he's just a congenital kleptomaniac, that's all. तो गवर्नर कहते हैं कि वो ऐसा वायलेंट नहीं है कि किसी पे घातक हमला कर दे। वो तो गाने वाने गाता था किसी कंसर्ट में, किसी की नकल, मतलब किसी स्टार की नकल करता था, किसी फेमस सिंगर की नकल करके गाने गाता था, बट ही इज़ अ कंजेनिटल क्लेप्टोमेनियक। कंजेनिटल मीन्स जन्म से ही, क्लेप्टोमेनियक एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को चोरी करने की आदत होती है, वो उसे अपनी आदत को कंट्रोल नहीं कर सकता। सो दैट्स ऑल, एंड द गवर्नर वाज टेम्प्टेड टू ऐड समथिंग एल्स बट थॉट बेटर ऑफ इट। सो वो कुछ और भी कहना चाहता था लेकिन वो चुप कर जाता है। सो प्रोबेबली इससे जो सेक्रेटरी था वो कन्विंस्ड था कि ये जो एग्ज़ाम लेने आएगा उसके ऊपर कोई भी घातक हमला नहीं करेगा। सो वो कहता है कि आप उसके लिए एक अलग से एक कमरा तैयार करवा दीजिए जहाँ पे हमारे यहाँ से कोई इंसान आके उसका एग्ज़ाम लेगा, और उस कमरे के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी वो बताते हैं कि उस कमरे के अंदर कम्युनिकेशन की कोई भी साधन नहीं होना चाहिए, यानी कि बातचीत करने का कोई भी साधन नहीं होना चाहिए। द गवर्नर chuckled politely. Chuckled means हंसना. Politely once more. Reiterated his thanks. Reiterated means दोबारा से कहना, अपना थैंक्स बोलता है, and slowly cradled the phone, और फ़ोन को रख देता है। Evans the break, as the prison officers called him. तो prison officers ने उसका नाम एवंस द ब्रेक डाला हुआ था। एवंस जो जेल तोड़ के जाता है, क्योंकि वो पहले 3 बार ऐसा कर चुका था। Thrice he had escaped from the prison, and but for the recent wave of unrest in the maximum security establishments up north, he wouldn't now be gracing the governor's premises in Oxford. ऑक्सफोर्ड प्रिजन में वो रहता था, लेकिन इतने ज़्यादा सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स थे कि गवर्नर को ये पक्का एश्योरेंस थी इस बात की कि ऐसा वो दोबारा कभी नहीं कर पाएगा, और जिससे कि गवर्नर का नाम खराब हो। और इसके अलावा गवर्नर ये सोचता था कि शायद एवंस जेन्युइनली ओ लेवल का एग्ज़ाम देना चाहता है और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। तो जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी थी उसकी। और 8:30 बजे on Monday 7th June, Evans' German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just from the D wing. So कुछ एक दिन पहले एग्ज़ाम के उसके टीचर ने उसके साथ हाथ मिलाया और कहा Guten Glück, Herr Evans, that means good luck, Evans। और एवंस कहता है कि क्या मतलब, उसको जर्मन की बेसिक बातें समझ नहीं आई और वो उनको पूछता रहता है। तो वो कहता है, तो उसका टीचर कहता है, यू हैवंट अ कैट इन द हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू, ऑफ कोर्स, बट कहता है कि तुम्हारे पास इतना सा भी चांस नहीं है कि तुम पास हो जाओगे, बिकॉज उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जर्मन का। और वो कहता है, आई मे सरप्राइज एवरीबडी। एवंस कहता है कि शायद मैं सबको चकमा दे दूँ, सबको हैरान कर दूँ। तो इन अ वे वो कहता है, वो समझता है कि ये कह रहा है कि मैं शायद इतना अच्छा कर जाऊँ कि सभी हैरान हो जाएंगे। नाउ एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग, जून 8 को सुबह 8:30 बजे, एवंस हैड अ विजिटर, 2 विजिटर्स इन फैक्ट। तो उसके कमरे में जहाँ उसे बंद किया गया था वहाँ पे 2 लोग आते हैं।
उनमें से एक था मिस्टर जैक्सन, जो कि वहाँ का पुराना ऑफिसर था, और एक उसके साथ आया था। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन्स, एक स्टीफन्स आया था, वो नया था। सर्ली लुकिंग, अ बर्ली सर्ली लुकिंग मैन। बर्ली मीन्स बिग, स्ट्रॉन्ग, टॉल, वेल बिल्ट, और सर्ली मीन्स गुस्सेबाज, जो गुस्से जैसा दिखता था। ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन, और वो अभी अभी उस जेल में ऑफिसर बना था। जैक्सन नॉडेड कर्टली एंड हाउज आर लिटिल आइंस्टीन दिस मॉर्निंग देन। उसे वो लिटिल आइंस्टीन के नाम से बुलाते थे। आइंस्टीन इसलिए क्योंकि आइंस्टीन एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवरीज करी थी। इसी तरह से एवंस को भी माना जाता था कि वो कुछ ना कुछ खोज खबर करके कोई नई चीज़ निकालता है, कोई नया तरीका निकालता है और जेल तोड़ के भाग जाता है, इसलिए उसको लिटिल आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता था। उस दिन 8 जून को एवंस के चेहरे पर शेव नहीं हुई थी। वो बहुत ही गंदा दिख रहा था। रेड एंड वाइट बॉबल हैट अपॉन हिज हेड, उसके सर पर एक टोपी रखी हुई थी। गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, आई वाज जस्ट गोना शेव व्हेन यू बर्स्ट इन। तो वो कहता है कि मुझे शेव करने का मौका दो, मुझे टाइम दो, मुझे शेव करनी है। और which reminds me, Jackson turned his eyes on Stephens. Make sure you take his razor out of the cell when he's finished scraping that ugly mug of his. Clear? तो स्टीफन्स को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं मिस्टर जैक्सन की तरफ से कि जब ये शेव कर लेगा तो इसका रेज़र ले लेना, बिकॉज उनका ये मानना था कि ये रेज़र से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। कोई भी तीखी चीज़ वो उसके पास नहीं छोड़ना चाहते थे जिससे कोई किसी भी तरह का जो इन्विजिलेटर आ रहा है उसको या एवंस अपने आप को काट ना ले या नुकसान ना पहुंचा दे। अब मिस्टर जैक्सन उसकी सिजर्स वगैरह सब ले लेते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्शनेबल था, वो तीखा सामान था और उन्हें लगता था कि उससे वो नुकसान पहुंचा सकता है। और इसके लिए मिस्टर जैक्सन बोलते हैं कि ऐसा गवर्नर का ऑर्डर है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यू वांट टू कंप्लेन, क्या तुम इसके बारे में कंप्लेन करना चाहते हो? तो एवंस जो है वो अपने शोल्डर्स यूं झटक देता है कि मुझे क्या ज़रूरत है। इस टाइप की इनकी आर्ग्यूमेंट, या एक कह लो कि एक वार्म वॉर इनकी शुरू हो गई थी, जो वो एक दूसरे के साथ किसी भी बात पे एग्री नहीं करते थे। उसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास आधा घंटा है, you've got half an hour to smarten yourself up, Evans, and take that bloody hat off. अब तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, तुम अपने आप को तैयार कर लो और ये अपनी हैट, ये अपनी टोपी उतार के हमें दे दो। तो वो एवंस जो है वो कहता है कि मेरी ये जो टोपी है, माई हैट इज़ अ लकी चार्म फॉर मी, ये मेरे लिए एक गुड लक का साइन है, तो इसे मैं नहीं देना चाहता, इसे मेरे पास ही रहने दो। मिस्टर जैक्सन, इट्स द ओनली थिंग दैट्स एवर ब्रॉट मी एनी सॉर्ट ऑफ लक इन लाइफ, kind of lucky charm, if you know what I mean. And today I thought, well, with me, exam and all that. So आज मेरा एग्ज़ाम है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये टोपी पहन के चलूँ क्योंकि मेरे लिए ये एक गुड लक का साइन है। Now buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion. Compassion means दया। कहीं उसके दिल में, जैक्सन के दिल में दया थी और उसका एक दया का जो टाइनी कोर ऑफ कंपैशन जो है वो उसके बारे में जानता था। एवंस जो था बहुत अच्छे से लोगों को पहचानता था क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट और चालाक किस्म का प्रिजनर था। वो पहचानता था कि जैक्सन के दिल में कहीं ना कहीं दया है, इसलिए वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपने लिए दया की याचना करता है। एंड ही एक्सपेक्ट्स, ही न्यू कि जैक्सन उसकी बात मान लेगा और उसको अलाउ कर देगा वो हैट पहनने के लिए। At 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McLary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. अब McLary उस इंसान का नाम है जो एग्ज़ाम लेने आ रहा है। 8:45 पे वो अपने घर से चलता है
Weatherman reported temperatures considerably below the normal for the day for early June. और उस दिन बहुत ठंड थी. उसने ओवरकोट, लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट पहना था, अ शेलो क्राउंड क्लरिकल हैट पहनी थी, एंड थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और आधा घंटा वह चलता रहा. और अब बारिश के चलते वो अपने थिक लेंसेज से, जो उसने स्पेक्ट्स पहनी थी, उससे ऊपर उसके रेन ड्रॉप्स हटा के वो जेल में पहुंच जाता है जहां उसे एग्ज़ाम लेना था. अब एग्ज़ाम लेने आया तो उसके साथ एक स्मॉल ब्राउन सूटकेस था जिसके अंदर वो कागज़ थे, वो फॉर्म्स थे जो उसे एवंस को देने थे, और उसके अंदर एक ट्यूब भी थी. उसकी तलाशी ली गई और ये पाया गया कि उसके बैग में एक ट्यूब थी जिसको देखकर जो प्रिजन की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने क्वेश्चन किया और उन्होंने पूछा कि मिस्टर मैक्लेरी, आप ये ट्यूब क्यों लेके जा रहे हैं? तो मिस्टर मैक्लेरी ने ये जवाब दिया कि इस ट्यूब से मुझे टॉयलेट सीट पे बैठने में आराम रहता है क्योंकि मुझे पाइल्स की तकलीफ़ है. और उधर एवंस जो है वो तैयार होकर एग्ज़ाम देने के लिए आ जाता है और मिस्टर जैक्सन जो है वो बार बार उसे वार्निंग देते हैं कि एवंस, यू शुड नॉट एक्ट वेरी स्मार्ट, तुम्हें बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, हम तुम्हें एक हॉक की तरह देख रहे हैं. I'll tell you who's going to listen in, laddie. It's the governor himself. कि गवर्नर अपने आप खुद इन सारी चीज़ों को देख रहा है. एंड I'll be watching you like a hawk. मैं तुझे एक हॉक की तरह, चील की तरह दूर से देख रहा हूँ, और कुछ भी गलत हुआ तो हम तुझे वहीं पे तेरे को पकड़ लेंगे. एवंस, सो कीप योर नोज क्लीन क्लियर. और वो कहता है कि तुम बिल्कुल इंसान बनकर इस एग्ज़ाम को लेना, कहीं भी चालाकी खेलने की कोशिश मत करना. So he walked towards the door. Evans nodded. He had already thought of that, and number 2 handkerchief was lying ready on the bunk, a neatly folded square of off-white linen. Just one more thing, Einstein. Yes, what that? Good luck, old son. और कहीं ना कहीं उसके दिल में उसके लिए दया तो थी, तो वो उसको गुड लक बोलता है, और शायद इसीलिए उसने उसकी बात मानी थी और उसे एग्ज़ाम देने की इजाज़त भी दी थी. मिस्टर मैक्लेरी उस प्रिजन में पहुंच जाते हैं जहां एवंस को बिठाया गया था पेपर देने के लिए. और एवंस जो है, फेसिंग द डोर, sat quietly at the farther of the 2 tables, his whole attention riveted to a textbook of elementary German grammar. Riveted means focused. So Stephens जो है, he took the key from the ring and the cell lock sprang back with a thudded metallic twang. It was 9:10 a.m. The governor switched on the receiver. So 9:10 हो गए थे और गवर्नर ने रिसीवर ऑन किया. And but wasn't it all a bit theatrical, schoolboyish almost? How on the earth was Evans going to try anything on today? 9:18 पे 9:18 a.m. Governor heard the voices again, and it was clear that the examination was going to be more than a little late in getting underway. So थोड़ा सा शायद लेट हो गया था एग्ज़ाम. और जब एग्ज़ाम शुरू होता है तो मैक्लेरी उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि तुम अपना नाम वगैरह लिखो, जैसे नॉर्मली किसी पेपर पे होता है. और वो उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, in the top right hand corner write your index number 313, and in the box just below write your center number 271. all right, so उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि इन नंबर्स को वो पेपर पे लिखें. so 9:20 a.m. एग्ज़ाम शुरू हो जाता है और थोड़ी देर बाद एवंस जो है वो ये नहीं चाहता होता कि मिस्टर स्टीफन्स वहाँ पे खड़े रहें. तो गवर्नर को कोई फ़ोन आता है और वो गवर्नर उस फ़ोन को सुन के जैक्सन को इंस्ट्रक्शंस देता है कि स्टीफन्स को एवंस के सेल में से निकाल लिया जाए, क्योंकि उसके वहाँ मौजूद रहने से एवंस को डिस्ट्रैक्शन होती है और वो अपना पेपर ध्यान से नहीं लिख पाता. 9:40
AM पर एग्जामिनेशन बोर्ड की बेल बजती है और वहाँ का जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है वो स्पेशल लैंग्वेजेस के पेपर में कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहता है। वो गवर्नर से बात करता है एंड विच ही इज़ अलाउड, और वो परमिशन उसे मिल जाती है और उससे वो कहते हैं कि हमें कुछ करेक्शंस करवानी है। तो some secret message but he could check on that immediately. He dialed the number of the examination board और उसे ऐसा लगता है कि ये शायद फेक मैसेज था। वो दोबारा उसी नंबर पे डायल करता है गवर्नर, तो वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आती, वो लाइन एंगेज्ड हो जाती है। सो मिस्टर मैक्लेरी उस दौरान अपने स्कॉटिश एक्सेंट में, उसका बहुत ही स्कॉटिश एक्सेंट था, वो बोलते हैं विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग अ वी वाइल मिस्टर एवंस एंड लिसन केयरफुली। तो वो उसे कहते हैं कि तुम कुछ टाइम के लिए प्लीज लिखना बंद कर दो और मेरी इंस्ट्रक्शंस को, जो कुछ करेक्शंस हैं, उनको ध्यान से सुनो। कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन O211 शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शंस, और वो कुछ करेक्शंस करवाते हैं। ऑन पेज 3 लाइन 15 फोर्थ वर्ड शुड रीड गोल्डनन नॉट गोल्डन, and the whole phrase will therefore read zum goldenen। और ये थी करेक्शन जो मिस्टर मैक्लेरी एवंस को पेपर पे करने के लिए कहते हैं। गवर्नर उसको सुनता है और शायद स्माइल देता है। उसकी स्माइल का कुछ हद तक ये मतलब होता है कि वो कन्विंस्ड था, उसे ये विश्वास था कि एग्ज़ाम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है और इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, एंड एवंस विल नॉट बी एबल टू ब्रेक द जेल। फिर से फ़ोन बजता है मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, दे नीडेड अ प्रिजन वैन एंड अ कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स, रिमांड केस। एंड फिर से एक फ़ोन बजता है और गवर्नर से कहा जाता है कि वहाँ से वो प्रिजन की जो वैन है कुछ प्रिजन ऑफिसर्स के साथ भेज दे, क्योंकि कोई रिमांड का केस है, किसी कैदी को लेकर जाना था। And within 2 minutes the governor was wondering whether that could be a hoax, और गवर्नर within 2 minutes ये सोचने लगा कि क्या ये कुछ genuine कॉल थी या कोई fake कॉल थी। He told himself not to be so silly. His imagination was beginning to run riot. एवंस फिर वो अपने आप को समझाता है कि मुझे इतना भी मूर्ख बनने की ज़रूरत नहीं है या इतना फंसी होने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल एवंस तो बैठा है जेल में और वो पेपर दे रहा है, वो कहीं नहीं भागा, क्योंकि उसकी सारी चिंता तो सिर्फ एवंस पे ही थी कि कहीं वो ना भाग जाए। सो पेपर चलता रहा और एट अबाउट 10:50 AM 11 बजने में 10 मिनट पे एवंस जो है वो कहता है कि मुझे अपने शोल्डर्स पे डालने के लिए ब्लैंकेट चाहिए है, और उसकी वो डिमांड मान ली जाती है, उसे ब्लैंकेट दे दिया जाता है, क्योंकि वो कहता है कि इस कमरे में बहुत ठंड है। और कहीं ना कहीं जैक्सन भी इस बात से कन्विंस्ड थे कि ठंड तो उस दिन बहुत थी, तो उसे एक ब्लैंकेट, कंबल दे दिया जाता है जो वो अपने आसपास लपेट लेता है। 11:20 11:20 पे एक बारी फिर से गवर्नर का फ़ोन जो है वो चलता है, आवाज़ आती है, एंड मैक्लेरी इन्फॉर्म्ड एवंस दैट ओनली 5 मिनट्स रिमेन्ड, और सिर्फ 5 मिनट बचे हैं उसका एग्ज़ाम ख़त्म होने में। 11:22 AM 11:30 बजे 11:25 पे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाना था। सो 3 मिनट पहले Jackson shouted along the corridor to Stephens. The governor wanted to speak with him. Hurry, man. और वो जैक्सन से कहता है कि गवर्नर तुमसे बात करना चाहता है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। Stephens picked up the phone apprehensively and listened to the rapidly spoken orders. और गवर्नर उसे कुछ ऑर्डर्स देता है, और ऑर्डर्स ये थे कि स्टीफन को खुद मैक्लेरी को बाहर तक छोड़ के आना है, ताकि एवंस जो है वो कुछ भी गड़बड़ ना कर सके। और स्टीफन्स डेफिनेटली उसके ऑर्डर्स को समझ जाता है और उसकी बात मानता है। 11:25 पे उसे लिखने के लिए बंद कर दिया जाता है। एवंस के पास टाइम ख़त्म हो गया था पेपर लिखने के लिए, और मैक्लेरी को ये कहा जाता है
कि आप अपना सामान पैक कर लो, और मिस्टर स्टीफन्स जो प्रिजन ऑफिसर था वो मैक्लेरी को बाहर तक छोड़ने जाता है, और वो बहुत अपने आप में खुश और प्राउड फील करता है कि मुझे चुना गया है कि मैं मैक्लेरी को बाहर तक छोड़ के आऊं। और जैसे ही वो उसको छोड़ के आता है और सबसे पहले वो उस कमरे में झांकता है कि एवंस तो बैठा है, कहीं वो तो नहीं भाग गया। जब वो उस कमरे में देखता है तो एक इंसान, मैक्लेरी की शक्ल का इंसान, खून में डूबा हुआ है, उसके सारे चेहरे पे खून है और वो वहाँ पे गिरा पड़ा है, और वो एकदम से दंग रह जाता है कि एवंस कैसे भाग गया। Oh no, Christ, no. There sprawled back in Evans' chairs was a man. For a semi-second, Stephens thought it must be Evans. A grey regulation blanket slipping from his shoulders, the front of his closely cropped, irregularly tufted hair. Tufted means cut. Awash with the fierce red blood which had dripped already through the small black beard, और उन बालों में से खून बह रहा था जो उसकी दाढ़ी में से निकल रहा था, and was even now spreading horribly over the white clerical collar and down into the black clerical front. और उसके कोट पे और जो उसका clerical collar था, clerical refers to that of a priest, जो priest white collar और black overcoat पहन के आया था, उसके ऊपर सारा ब्लड ही ब्लड गिरा हुआ था। स्टीफन्स ने चिल्लाकर जैक्सन को बुलाया और कहा कि एवंस तो भाग गया और इस इंसान को इंजर कर गया, इसको जख्म दे गया, इसके यहाँ से खून बह रहा है। तो एकदम से हबड़ दबड़ मच जाती है प्रिजन में, और उन्हें लगता है कि ये कैसे हो गया। अभी 2 मिनट पहले तो एवंस यहाँ पे बैठ के पेपर दे रहा था, और अब वो भाग गया और इस इंसान को जख्मी हालत में यहाँ पे छोड़ गया। फिर वो उसको पूछते हैं कि ये क्या हुआ, तो वो कहता है कि डोंट वरी अबाउट एम्बुलेंस, यानी कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एम्बुलेंस बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है वो कहाँ गया है, हम उसके पीछा करेंगे और उसको पकड़ेंगे। और वो कहता है गेट द गवर्नर, आई नो वेयर एवंस हैज़ गॉन। छोड़ दिया गया उसको, दैट मीन्स वो जानता है कि एवंस कहाँ गया है। Almost immediately sirens were sounding, prison officers barked orders, puzzled prisoners pushed their way along the corridors, doors were banged and bolted and phones were ringing everywhere. 1 मिनट के अंदर अंदर सायरन बजने लग गए, दरवाजे बंद कर दिए गए, प्रिजनर्स इधर उधर भागने लगे कि वहाँ पे एकदम हबड़ा दबड़ी मच गई कि एवंस जो है वो फिर से भाग गया। और उनको ये नहीं पता था कि जो इंसान ऐसे कह रहा है कि एवंस मेरे को मार के भाग गया, वो एवंस ही था। उसे कहते हैं कि हम तुम्हें हॉस्पिटल अभी ले जाते हैं, और वो कहता है कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, एवंस को पकड़ना है, पहले हम उसका पीछा करेंगे। और वो उसे अपनी वैन में, अपनी प्रिजन की ही कार में बिठा के, वैन में बिठा के लेके जाते हैं एवंस का पीछा करने के लिए और ढूंढने के लिए कि वो कहाँ चला गया है। वो इंसान बताता है कि I'm all right, look here. Awkwardly he opened the German question paper and thrust it before the governor's face. It's there, do you see what I mean? तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर को देखो, इसके ऊपर जो लिखा है जर्मन में वो हमें इंडिकेशंस देता है कि वो कहाँ गया होगा। गवर्नर उस पेपर की तरफ देखता है, नीचे देखता है और रियलाइज करता है कि मैक्लेरी क्या कहना चाहता है। मैक्लेरी उसे ये बताना चाहता था कि a photocopied sheet had been carefully and cleverly superimposed over the last originally blank page of the question paper. एक फोटोकॉपीड शीट थी जिसे ओरिजिनल पेपर के ऊपर बहुत ध्यान से चिपका दिया गया था। You see what they have done, गवर्नर, you see, वो कहता है कि अब तुम्हें समझ में आया कि उन्होंने क्या कहा था, और वो उस लिखे हुए टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके बताता है कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये वो चीज़ें हैं, वो लाइनें हैं जो हमें बताएंगी कि एवंस कहाँ गया है।